Okay. Good evening, everyone. Now we can let me share the screen. Yes, is it screen visible to everyone? Screen visible आहे का? Yes करा. If screen is visible, please say yes. Please type yes in the chat box if you can see the screen. Am I audible to everyone? Yes, so screen is visible. Apeksha, Uma, Pranali. Yes or no? Please type yes or no in the chat box if you can see the screen. Okay, thank you. Thank you so much. Students, kindly reply. Otherwise, it will be very difficult for me to understand whether you can watch it or not. Chalo, we will start our same topic, and today we will complete our trigonometry. Take question number. Start. Tan A plus tan B divide cot A plus cot B. Try to solve this. Yes. Okay. The question is what? Tan A plus tan B divide cot A plus cot B. कैसे करोगे student ये? So let me explain you. See, everyone knows what is tan A. Tan A means what? Sin A upon cos A. Yes. What is tan B? Sin B upon cos B, which is equal to what is cot A? Cot A means you can write opposite, ulta, cos A upon sin A. Plus cos B upon sin B. यहाँ तक सबको clear हो गया? Now what we can do? We can go for cross multiply. If I go for cross multiply, what I will get? Sin A into cos B plus sin B or cos A sin B into cos A divide cos A into cos B. Divide cos A into cos B, and again divide. Again here we'll go for a cross multiplication. Cos A into sin B plus sin A into cos B divide इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन sin A into sin B. Is this clear everyone? Okay. Now see students, what we have done, हमने क्या किया? See very simple है. हमने tan A का वैल्यू पुट किया, that is what sin A upon cos A, सभी को पता है. हमने tan B का वैल्यू पुट किया, sin B upon cos B. cot A का मतलब क्या होता है? tan A का उल्टा. मतलब tan A अगर sin A upon cos B तो cot A क्या होगा? cos A upon sin B. देन हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला मिला. अब देखो ये वाला अपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ का ये वाला पार्ट दोनों सेम है. देखो तो ये हो जाएगा कैंसल. सो एट द एंड स्टूडेंट्स व्हाट विल लेफ्ट, ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, sin A into cos B, और जो नीचे वाला पार्ट है cos A वो नीचे आ जाएगा, cos A upon
cos b. Clear this everyone? Now sin a upon cos a का मतलब क्या होगा? tan a into cos b upon ये sin a upon sin b, सॉरी यहाँ पर sin a upon sin b है ना, ये sin a upon sin b, तो ये यहाँ पर आ जाएगा sin b, तो ये sin b upon cos b होगा tan b, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट आंसर, राइट डाउन। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं था, खाली जस्ट आपको फॉर्मूला पुट अप करना था, दैट्स इट, और क्रॉस मल्टीप्लाई। होप दिस क्लियर एवरीवन? Clear this everyone? Take this now. Sin square x plus 2 tan square x minus 2 sec square x plus cos square x. Please write down this. Sin square x plus 2 tan square x minus 2 sec square x. अभी यहां पर देखो, आप लोगों को कुछ फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम बताए थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक होगा sin square x plus cos square x is equal to 1. Hope everyone knows. And sec square x 1 plus tan square x. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूले आपको जस्ट गो थ्रू करना है। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, सी यहां पर देखो sin square x है और यहां पर cos square x, उनको साथ में ले लो, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, sin square x प्लस cos square x। अभी आप एग्जाम में डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, आपको एग्जाम में स्टेप को मार्क्स नहीं है, सो नो नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड यू आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द स्टेप्स। प्लस यहां पर 2 tan square x आप, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वेट अ मिनट, पहले माइनस को ले लो, बिकॉज यहां पर ये फॉर्मूला बाद में ऐसे बनेगा, देखो ये बाद में कैसे बनेगा, sec square x माइनस tan square x विच इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 बचेगा, ये tan यहां पर माइनस हो जाएगा, तो व्हाट आई विल डू, -2 sec square x प्लस ये देखो 2 tan square x मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर? ओके, नाउ इसका वैल्यू तो आप सबको पता है क्या होगा स्टूडेंट्स, 1, यहां पर 1 हो गया, माइनस यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, दोनों कॉमन ले लो, और अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर sec square x। अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और tan square x हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। नाउ 1 minus 2 sec square x minus tan square x कितना होगा स्टूडेंट, देखो 1 होगा, 1 यहां पर भर दो, फाइनल 1 minus 2 कितना होगा, -1, राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन? सो रिमेंबर, सो
whatever formulas I have given, which are very IMP, if you remember that, so these problems will be solved only in 5 to 10 seconds. Is this clear, everyone? तो आप लोगों ने लिख लिया इसे? Okay, great. Thank you so much. See, if you reply very immediately, then it will be very like easy for us to cover maximum number of questions. Next देख लीजिए. तो यहाँ पर the value of theta, the value of theta which satisfies the equal tan square theta plus 3, tan square theta plus 3, which is equal to 3 sec theta, and 0 degree more than equal to theta, so 0 degree less than equal theta, and theta is less than or equal to 90 degree. ये कंडीशन है, मतलब आपको जो थीटा मिलेगा वो 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, इक्वल होगा, बट 90 डिग्री से नीचे या इक्वल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 0 डिग्री. Now see, we have this equation. Please pay attention now. As everyone knows, what is sec square theta? 1 plus tan square theta. ये अभी मैंने आपको बताया था, राइट? तो अगर सपोज मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो व्हाट विल हैपन, स्क्वायर रूट अगर लेता तो ये हो जाएगा sec थीटा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 plus tan square theta. Yes or no? So what I can do now, see, as we know, we have here tan square theta plus 3 which is equal to 3 into sec theta की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं. Yes or no? So what I can write in root 1 plus tan square theta. Yes or no? नाउ अब मुझे ये रूट निकालना है तो व्हाट आई विल डू, दोनों तरफ का मैं स्क्वायर करूंगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा. प्लीज पे अटेंशन. तो ये हो जाएगा tan raised to 4 theta plus 9 like a square plus b square plus 2ab, मतलब 3 into 2 होगा 6 and 6 ab मतलब 6 into tan square theta. ये हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहां पर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट नाउ सी, यहां पर 6 9 tan स्क्वायर. नाउ ये अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 9 1 जा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा.
क्लियर एवरीवन? ये मैंने 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो 6 tan स्क्वायर थीटा है और यहां पर 9 tan स्क्वायर थीटा है, और ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। ओके, यहां पर बचा स्टूडेंट्स tan रेज टू 4 थीटा, tan रेज टू 4 थीटा विच इज इक्वल टू ये 6 tan स्क्वायर थीटा यहां पर आके माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 tan स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, यहां तक लिख लो। Okay, now pay attention. So tan, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, देखो ये tan रेज टू 4 थीटा है। सो ये tan रेज टू 4 थीटा माइनस 3 tan रेज टू 2 थीटा विच इज इक्वल टू, यहां पर 0 आया। क्लियर दिस? ओके, अब नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स यहां पर। ओके, ये हमने सॉल्व किया। व्हाट इज थीटा का ऑप्शन में आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट इज थीटा वैल्यू गोइंग टू बी? ओके देन यहां से अगर आप लोगों ने tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा बाहर अंदर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? tan स्क्वायर थीटा -3, यस, विच इज इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिले, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सो यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखो, ये क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू √3 होगा, और ये क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0, राइट? तो नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए थीटा का वैल्यू में क्या पुट करूंगा तो मुझे √3 मिलेगा? टेल मी फर्स्ट, मैंने आपको कल टेबल दिया है। टेल मी फास्ट।
Okay, clear everyone this? Okay, आप लोगों ने लिख लिया इसे? Okay, now see students, next problem we'll see. Okay, now let's take if x is equal to a, x is equal to a sin theta and y is equal to b tan theta, then find a square minus x square, a square upon x square minus b square upon y square. कैसे करोगे स्टूडेंट ये? So now we have a two equation, x is equal to a sin theta and we have y is equal to what? B tan theta, right? And हमें find करना है a square upon x square minus b square upon y square. So see यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हो ना, देखो ये इक्वेशन पहले मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ. x is equal to a sin theta, yes or no? तो आपको a ऊपर चाहिए, तो मैं ये x यहाँ पर ले आता हूँ और ये साइन यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 upon sin theta which is equal to a upon x. Is this clear everyone? Same we can do with this. b ऊपर चाहिए तो 1 upon tan theta होगा which is equal to b upon y. यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई यस और नो. वी हैव जस्ट डन मॉडिफिकेशन. Okay, now what we can do, see, as everyone knows what is 1 upon sin theta. 1 upon sin theta is what? Nothing but cosec theta. तो यहां पर मैं लिख देता हूं cosec theta which is equal to a upon x. और what is 1 upon tan theta? सबको पता है 1 upon tan theta which is equal to cot theta. So यहां पर मैं लिख देता हूं cot theta which is equal to b upon y. यहां तक सबको क्लियर हो गया? नाउ यस, अब इन सबका स्क्वायर करो, बिकॉज आपको देखो यहाँ पर स्क्वायर चाहिए. इसका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका होगा कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. हमने क्या किया? दोनों तरफ का स्क्वायर किया. अब हमें क्या करना है? दोनों में माइनस चाहिए, तो मैं माइनस पुट कर देता हूं. अभी दोनों में क्या चाहिए? माइनस. तो माइनस कैसे होगा स्टूडेंट? देखो इसमें से, सॉरी, अब इसमें से ये टर्म को माइनस कर दो. तो देखो व्हाट आई कैन डू, यहीं पर लिखता ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला मुझे? कोसेक स्क्वायर थीटा. राइट डाउन यहां पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला मुझे? कॉट स्क्वायर थीटा. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा.
यस, तो ये कितना होगा, 1 होगा। राइट डाउन दिस, ये 1 क्यों होगा, आप सबको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, मैंने दिया है ऑलरेडी। तो जब ये कॉट स्क्वायर थीटा जब यहां पर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहां पर बचेगा 1। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये सिंपल था। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट? ओके, अब देख लीजिए, अब अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको टेबल से आप आराम से कर सकते। सपोज इफ वी हैव अ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा, और यहां पर भी 1 प्लस sin थीटा, और आपको फाइंड करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये हम लोग टेबल से करेंगे। आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू आपको अज्यूम करना है, आइदर इट कुड बी 0 डिग्री, पहले 0 देखो, फिर 90 डिग्री देखो, और बाद में 45 डिग्री देखो। क्लियर एवरीवन? पहले आपको देखना है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो अब 0 डिग्री पुट करके देखो, 90 डिग्री से मिला देखो, 45 डिग्री से देखो। तो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इफ आई पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके, अगर मैंने थीटा को 0 डिग्री पुट किया तो मुझे बताइए tan 0 कितना होगा? टेल मी फास्ट, व्हाट इज tan 0 गोइंग टू बी? टेबल देखो, मैंने कल पढ़ाया था, टेबल देख लीजिए, लास्ट टाइम मैंने जो टेबल पढ़ाया था उसमें tan 0 कितना है, बोलो मुझे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, अपूर्वा का आंसर आया, वेरी गुड अपूर्वा। tan 0, एग्जैक्टली, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस, अगर tan 0 डिग्री अगर 0 होगा तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब मुझे बताइए, थीटा का वैल्यू हमने 0 लिया है, तो मुझे बताइए sin 0 कितना होगा? sin 0 फास्ट, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? वेरी गुड समीक्षा, तो वो होगा 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस 0 होगा। तो फाइनली आंसर क्या है? 1 प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 0 1, तो देखो आंसर क्या आया? 1। राइट डाउन, इतना सिंपल है। इफ यू रिमेंबर द टेबल, और मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताया है कि नॉर्मली पहले 0 डिग्री देखो, देन यू गो फॉर 90 डिग्री, और देन यू गो फॉर 45 डिग्री। अगर आपको 0 डिग्री से आंसर मिल रहा है तो आपको ये दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, करो। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा। ओके, साइन एंड कॉस है, तो मैंने पहले क्या बोला, पहले 0 डिग्री डाल के देखो, 0 डिग्री, अगर वो नहीं हुआ तो 45 देखो, और वो नहीं चला तो फिर 90 डिग्री देखो। अब साइन एंड कॉस है, तो साइन 0 0 होगा,
ओके, तो थीटा का वैल्यू अगर सपोज यहाँ पर अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू अगर आप लोगों ने यहाँ पर आपको क्या लेना है, अगर थीटा का वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो ये 45 होगा, और साइन 40, और यहाँ पर आपने भी 0 लिया तो साइन 45 का वैल्यू कितना रहता है 1/√2, और cos 45 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो मतलब आपको √2 में मिलेगा। लेकिन अगर 1 चाहिए तो आप क्या ले सकते हो, अगर आपने समझो साइन 45 लिया, थीटा का वैल्यू अगर आपने साइन 45 लिया सपोज, तो हम लोग सपोज अगर पुट थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं, प्लीज पे अटेंशन ना, व्हाट इज गोइंग टू बिकम साइन 45 प्लस 45, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस कॉस 45 माइनस 45 मैंने पुट कर दिया। क्लियर एवरीवन? सो नाउ ये 40 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो गया, माइनस कॉस ये हो गया 0 डिग्री। यस और नो? तो नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1, माइनस कॉस 0 डिग्री कितना है स्टूडेंट्स, सबको पता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, राइट। बस इतना ही करना है। तो आपको वैल्यू ऐसे लेने हैं जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर सपोज अगर यहाँ पर आप लोगों ने अगर 0 भी लिया होता, सपोज अगर आप लोगों ने यहाँ पर 0 डिग्री भी पुट किया होता तो आपको क्या मिलता, देखो साइन 45 प्लस 0 डिग्री, यस और नो, माइनस कॉस 45 माइनस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू, तो ये कितना होता स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। यस और नो? तो साइन 45 कितना होता, 1/√2, माइनस कॉस 45 भी 1/√2 होता, तो ये माइनस आंसर क्या यहाँ पर भी कितना आता, 0 आता। तो यू कैन टेक 0 और 45 दोनों में आपका आंसर सेम आता था। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्राई दिस। अभी आप लोग ये ट्राई करो, साइन रेस टू 6 थीटा cos रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक हिंट, जब साइन और कॉस होता है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू एक हिंट, जब खाली साइन थीटा और कॉस थीटा देते हैं तो थीटा का वैल्यू हमेशा 0 डिग्री पकड़ लीजिए, वुड बी वेरी इजी। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया साइन रेस टू 6 थीटा का वैल्यू मैंने डाल दिया 0 डिग्री, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू डाल दिया 0 डिग्री, या आप इतना लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली अज्यूम करो, मैं आपको, हाँ, अगर पुट, लेट मी पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस और नो? तो मुझे बताइए साइन साइन 0 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, साइन 0 का वैल्यू, एग्जैक्टली श्रद्धा ने बोला साइन 0 का वैल्यू 0 है। यस, अगर आपने यहाँ पर सपोज अगर आपने यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो साइन रेस टू 6 है, तो 0 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। प्लस मुझे बोलो, और देखो कहाँ कहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर भी थीटा साइन है तो ये 3 इंटू ये भी 0 होगा, और ओके नाउ टेल मी कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस 0 कितना है, मुझे मुझे बोलो स्टूडेंट्स, कॉस 0 डिग्री कितना है। वेरी गुड पूनम, तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया और इंटू यहाँ पर 1 कर दिया, तो ये हो गया 0, ये 1 प्लस 3 इंटू 0, 0 0 इंटू 1 0 होगा, तो आंसर हो गया 1। राइट डाउन दिस।
Okay, clear this? Okay, now try to solve this. Sec a minus cos a उसका स्क्वायर, कोसेक ए माइनस साइन ए उसका स्क्वायर, उसका। ट्राई टू सॉल्व दिस। सेक ए माइनस कॉस ए प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए माइनस कॉट ए माइनस टैन ए। ओके, नाउ स्टूडेंट देखो यहां पर अगर आप टैन, अगर इफ यू ट्राई टू पुट थीटा का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू, इट मींस व्हाट, ए मतलब थीटा। इफ यू अगर ट्राई टू पुट थीटा का वैल्यू अगर आप जीरो डाल के देख रहे हो, थीटा जीरो, तो टैन 0 डिग्री 0 होगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू कॉट 0 डिग्री तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो डेफिनेटली यू कैनॉट पुट थीटा का वैल्यू 0। क्लियर एवरीवन दिस? बिकॉज दीज आर व्हाट रिवर्स प्रोपोर्शन। सेक होगा तो उसका उल्टा कॉस होता है, कोसेक होगा तो उसका उल्टा टैन होता है, और कॉट होगा तो उसका उल्टा टैन होगा। तो अगर टैन 0 डिग्री अगर 0 है तो उसका उल्टा, 0 का उल्टा कितना होगा? नॉट डिफाइंड। तो यू कैनॉट पुट थीटा, तो यू कैन, अगर आपका जैसे मैंने कहा कि अगर आप थीटा का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। यस और नो? यस। सो नाउ टेल मी व्हाट इज sec 45 डिग्री, टेल मी फास्ट। sec 45 बोलो फटाफट। अगर sec 45 अगर √2 है तो ये sec का उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर हो गया। टेल मी cosec 45 कितना है स्टूडेंट्स? cosec 45 अगेन √2 है, तो ये भी होगा 1/√2 माइनस cot 45 कितना है? cot 45 1 है, तो उसका tan भी 1 ही होगा, ये हो गया स्क्वायर। अब देख लीजिए, इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √2 इंटू √2 2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 ऐसा होगा, प्लस √2 इंटू √2 2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 ऐसा हो जाएगा, और ये स्क्वायर है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर। -1 -1 0, तो डोंट राइट दिस टर्म बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो ये 2 - 1 1/√2 दैट इज बिकम्स 1/2 इफ यू डू द स्क्वायर, प्लस ये होगा 1/2, तो आंसर होगा 1। प्लीज राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस करो। यस। तो ये आप कभी यूज कर, ये थीटा का वैल्यू को कभी यूज करना जब आपके ऑप्शंस में थीटा का वैल्यू, ऑप्शंस में अगर आपको फिगर दिया रहेगा 1 3 4 5, तो आप यू कैन कंसीडर थीटा वैल्यू 0 45 और 90 डिग्री। ओके, नाउ और एक टाइप देखो, अब यहां पर पूछा है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये कंटिन्यू रहेगा cos 178 डिग्री, और ये कंटिन्यू रहेगा cos 179 डिग्री। यहां पर बीच में कुछ नहीं तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होता है, डू नॉट फॉरगेट, मल्टीप्लाई ये है। अब आपको क्या करना है, cos 1 डिग्री से लेके cos 179 तक आपको ये पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आइदर दे गो फॉर इट और दे लीव इट। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं अगर आपको ट्रिक पता नहीं होगा तो। अब इसका मतलब देखो स्टूडेंट, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर 1 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है। ओके ओके, या इंटू 3 है,
और यहां तक है, और यहां पर समझो यहां पर उन्होंने 9 दिया है, 9 9 है, और यहां पर 0 है, राइट। अब मुझे बताइए कि अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो मुझे फास्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 तक चला है। अब मुझे इन सबका मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या होगा बोलो। एग्जैक्टली देखो, अपेक्षा ने, अपूर्वा, श्रद्धा, सब लोगों ने आंसर, पूनम ने आंसर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 आता है तो 0 इंटू एनी नंबर करोगे तो आपको आंसर अपूर्वा 0 मिलेगा। क्लियर एवरीवन। तो आप देखो यहाँ पर cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री हमें पता नहीं, टेबल में 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है, टेबल में क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, राइट। तो यहां पर एक टर्म देखो, ये 1 2 3 4 5 ऐसा सब चल रहा है, तो आपको एक टर्म ऐसा मिलेगा जहां पर जैसे सपोज अगर यहाँ पर cos 90 डिग्री तो आएगा ही ना, बिकॉज आप काउंट करोगे 3 4 5 6, तो cos 90 डिग्री बीच में आएगा, तो cos 90 डिग्री कितना है मुझे बोलो फास्ट। एग्जैक्टली, तो cos 90 डिग्री 0 है। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में कहीं पर भी 0 आ गया तो पूरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। राइट डाउन दिस, इतना सिंपल है ये। इज दिस क्लियर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये चलेगा स्टूडेंट्स tan 89 डिग्री तक। क्लियर एवरीवन दिस। अब प्रॉब्लम यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है कि tan का कोई भी वैल्यू 1 से लेके 89 तक, कोई भी वैल्यू का, कोई भी डिग्री का वैल्यू 0 नहीं है, यस और नो। क्योंकि देखो tan 0 डिग्री 0, बट यहां पर 0 डिग्री दिया ही नहीं है। देन tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 1 है, और tan 60 √3 है, और tan 90 नॉट डिफाइंड है, और यहाँ पर tan 90 भी नहीं है और tan 0 भी नहीं है। तो ये वाले केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि cos 90 को मैंने 0 पकड़ा था, बट यहाँ पर पॉसिबल है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब देखो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, किसी भी 2 डिग्री का अगर एडिशन 90 डिग्री होता है तो हम लोग क्या पकड़ देते, विच इज इक्वल टू पकड़ देते 1। यस और नो स्टूडेंट। यस और नो, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहां पर देखो, अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री है, तो ये कैसे चलेगा, एक स्टार्ट चलेगा और एंड चलेगा। देखो तो tan 1 डिग्री है, tan 1 डिग्री, उसके साथ में कौन जुड़ेगा, tan 89 डिग्री। यस और नो। तो ये 1 डिग्री और ये 89 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 2 के साथ कौन चलेगा, tan 2 डिग्री के साथ कौन होगा स्टूडेंट्स, tan 88 डिग्री, 89 के पहले वाला। क्लियर एवरीवन। तो tan 3 के साथ कौन चलेगा, बोलो मुझे, tan 3 डिग्री के साथ कौन सा डिग्री चलेगा, ये 88 होगा, 88। तो कौन सा डिग्री होगा, tan 87 डिग्री। आपको देखना क्या है कि 2 डिग्री का एडिशन एग्जैक्टली। तो आप जब ऐसे करते जाओगे स्टूडेंट्स तो आपको बाकायदा क्या मिलेगा, देखो एक टाइम ऐसे आएगा कि आप जब ऐसे करते जाओगे तो आपको ये सब 1 1 मिलेगा, लेकिन आपको एक पेयर का पेयर नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा, tan 45 डिग्री का, क्योंकि ये तो अकेला ही रहेगा, और इसके साथ कोई भी डिग्री ज्वाइन कर लो, क्योंकि tan 45 तो अकेला ही मिलेगा ना, और 45 के साथ आप दूसरा 45 नहीं लोगे, बिकॉज tan 45 अकेला ही होगा, और इसके साथ कोई भी डिग्री ज्वाइन करो 90 टोटल नहीं होगा, 45 के साथ 45 ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये tan 45 तो एक ही रहेगा।
तो फाइनली tan 45 डिग्री कितना होगा? इन सबका तो 1 होगा, तो मुझे बताइए tan 45 कितना होगा? व्हाट इज tan 45? tan 45 नथिंग बट आल्सो व्हाट 1, तो ये भी 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो, तो फाइनली ये टर्म का आंसर क्या होगा? 1। राइट डाउन। इतना इजी है स्टूडेंट ये। तो किसी भी 2 डिग्री का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो उसे 1 पकड़ना है, लेकिन tan 45 के साथ दूसरा कोई भी मैच नहीं होगा, क्योंकि ये tan में ही दिया है, तो tan 45 ये अकेला टर्म बच जाता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। इज क्लियर दिस एवरीवन? आप ये लो, अभी आप ये ट्राई करो। cot 41 डिग्री, ओके नाउ टेल मी इसका आंसर क्या हो सकता है फास्ट? अब देखो मैंने आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स, कि किसी भी 2 डिग्री का 90 डिग्री होना चाहिए, तो आप किसको किसके जोड़े? देखो cot 41 को 49 के साथ जोड़ो तो ये होगा cot 49, यस और नो? फिर 42 किसके साथ होगा? cot 42, cot 48 के साथ, इनका टोटल देखो 90 हो रहा है, राइट? तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये भी 1 होगा, लेकिन किसका नहीं होगा? अगेन यहाँ पर एक cot 45 बचेगा, तो cot 45 का आंसर भी होता है 1, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका भी आंसर हो जाएगा 1। तो बहुत सिंपल ये है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते ही आते एग्जाम में। Is this clear everyone? Please reply yes or no. ओके ओके नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये पैटर्न को समझ लीजिए। ट्रिक बता देता हूँ। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट? cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री and cos 80 degree which is equal to what? Tan 20 degree, tan 40 degree
एंड tan 80 डिग्री विच इज इक्वल। अब स्टूडेंट मुझे यहां पर बताइए सीरीज में कौन सा डिग्री मिसिंग है, मुझे बोलो फास्ट। अगर आप सीरीज देखोगे तो कौन सा डिग्री मिसिंग लग रहा है आपको? अब देखो यहां पर 20 है, राइट, यहां पर 20 है, उसके बाद यहां पर 40 है, और डायरेक्टली जंप किए 80 डिग्री पे, तो कौन सा मिसिंग है बोलो फास्ट। वेरी गुड अपूर्वा, अपूर्वा ने सबसे पहले आंसर दिया कि सर वहां पर साइन 60 डिग्री मिसिंग है, राइट। तो जो मिसिंग है वही आपका आंसर है। देखो बहुत सिंपल है, तो यहां पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट 1/4, बस ये आपका आंसर होगा। प्लीज राइट डाउन दिस। अगर ऐसे वाले टर्म में जो टर्म मिसिंग है वही आपका आंसर है, बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट 1/4 बिफोर दैट। 1/4 साइन 60 डिग्री। सेम यहां पर देखो अगेन 20 डिग्री, अगेन 40 डिग्री, अगेन 80 डिग्री, अगेन विच डिग्री इज मिसिंग? 60 डिग्री। सो दैट योर आंसर, तो ये होगा cos 60 डिग्री, बिकॉज ये cos वाला सीरीज है, बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट 1/4 बिफोर दैट। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको नॉर्मल वैसे करना चाहोगे तो बहुत समय जाएगा, बट मैं आपको ट्रिक पढ़ा रहा हूं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन, यहां पर भी सेम, ये tan है, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, एंड दिस इज tan 80 डिग्री। अगेन which degree is missing here? Obviously 60 degree. So what your answer going to be? Tan 60 degree. But remember students, यहां पर जब भी साइन एंड कॉस पे आंसर होगा तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना है, बट व्हेन इट कम्स टू tan तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1/4 नहीं करना है, उसको tan 60 डिग्री लिखना है, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? सेशनचं लेक्चरला 8 ते 9:30 ना, बरोबर आहे ना? संपत आलं ना लेक्चर? हा तिने मेसेज केला. आता मी मला कसं करणार ना, तिने सांगितलं एव्हरी वन लुकिंग टू लीव टुडे लेक्चर, ओनली टू पार्टिसिपेंट आर प्रेझेंट. Okay, now see what is next concept. If question comes like this, suppose अगर क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे आता है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। क्लियर? नाउ अब देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या हो गया कि साइन 60 डिग्री जो अर्लियर क्वेश्चन में मिसिंग था, आज यहां पर अभी ऐड हो गया। देखो क्लियर? नाउ तो आपको पता है व्हाट इज साइन 60 डिग्री वैल्यू? व्हाट इज साइन 60 डिग्री वैल्यू? विच इज नथिंग बट √3/2। यहां पर भर दो। और आपको पता है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री को आप कैसे लिखोगे? इंटू 1/4 इंटू साइन 60 डिग्री। ये सबको पता है, ये तो हमने अभी प्रीवियस किया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी? √3/2 इंटू 1/4 इंटू अगेन व्हाट इज साइन 60 डिग्री? √3/2. So √3 into √3 would be 3, and 4 2s are 8, and 8 2s are 16. Right down. ये आपका आंसर हो गया 3/16. Clear this? Is this clear?
Okay, now we'll see last question. If tan 2 theta into tan 3 theta which is equal to 1 and आपको फाइंड करना है 2 cos square पाई थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आपको फाइंड करना है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करोगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि डिग्री जब होगा 2 डिग्री, डिग्री 1 थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर आप मिलाओगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर देखो, यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा और यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है 3 थीटा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा तो डेफिनेटली कितना होगा 90 डिग्री। यस और नो? सो ये हो गया 5 थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। So what is theta value going to be? 90 upon 5 which is going to be or let it be यहां पर होगा 18 डिग्री, राइट? यस, बट आपको पता है, देखो आपको फाइंड क्या करना है, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा का वैल्यू कितना मिला अभी हमें 90 डिग्री। पुट कर दो यहां पर 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 माइनस 1। So at the end what you will get 2 cos square 90 divided by 2 means 45 degree minus 1. Yes or no? So cos 45 degree कितना होगा स्टूडेंट्स? cos 45 degree, tell me fast. 2 into what is cos 45 degree? Check the table and let me know what is cos 45 degree. Cos 45 degree एग्जैक्टली 1 by रूट 2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 by 2। तो यहाँ पर 1 by 2 आ गया माइनस 1, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली 1 माइनस 1 आंसर क्या होगा 0, राइट? तो ये लेवल के जो हमने अभी जो सेशन ट्रिग्नोमेट्री पे कवर किया है, 3 सेशंस वी हैव कवर्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री और इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। तो ये लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने जो कवर किए जो 1 और 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में कंफर्म आते ही आते हैं। ओके, so there are some questions can be solved with the help of theta, or there are some question can be solved with the help of formulae. So it depends on practice. You have to do a lot of practice. Okay, is this clear, everyone?